Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो प्लीज़ वॉच माय वीडियो टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज which nation's health minister has been tested positive for COVID-19 virus? Which nation's health minister, किस देश के स्वास्थ्य मंत्री कोविड-19 वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं? Which nation's health minister has been tested positive for COVID-19 virus? And here are the options: Italy, South Korea, UK, France. So here the correct answer is UK. UK's health minister Nadine Dorries tested positive for COVID-19 virus recently. The minister had begun showing symptoms of the virus while signing a legislation regarding the outbreak on March 6. She is the first UK parliamentarian to have been infected by the deadly virus. Okay, so UK के स्वास्थ्य मंत्री नदीन डोरिस, he is the one to test positive for COVID-19 virus recently. हाल में ही वो COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं. इन्हें कुछ वायरस के कुछ सिम्टम्स आ रहे थे. 6 मार्च से पहले ही जब ये लेजिस्लेशन में साइन कर रहे थे तभी इन्हें वायरस के कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे. और ये यूके पार्लियामेंटेरियन की फर्स्ट हैं जिन्हें डेडली वायरस ने इन्फेक्ट किया है. शी इज़ द फर्स्ट इन यूके पार्लियामेंटेरियन टू हैव बीन इन्फेक्टेड बाय द डेडली वायरस. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So here the question number 2 is, which country witnessed the swearing in of 2 presidents on March 10, 2020? किस देश के प्रेसिडेंट ने 10 मार्च 2020 को 2 प्रेसिडेंट का स्वेरिंग इन को विटनेस दिया है. ओके, so here the options are Sri Lanka, Afghanistan, Malaysia and Maldives. So here the correct answer is Afghanistan. Afghanistan saw double swearing in on March 10, 2020 with incumbent President Ashraf Ghani sworn in for a second term and his rival Abdullah also sworn in a parallel inauguration. ओके, अफ़गानिस्तान. ओके, इसका आंसर है अफ़गानिस्तान. अफ़गानिस्तान ने डबल स्वेरिंग हुआ 10 मार्च 2020 में और उनके प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ घानी के साथ. सेकेंड टर्म में अशरफ घानी के साथ स्वर्ण हुआ और उनके राइवल अब्दुल्ला भी पैरेलल इनॉग्रेशन में स्वर्निंग कर रहे थे. ओके, so now let's move to next question. So here the question number 3 is, which Indian badminton player recently won the BBC India Sportswoman of the Year award? Okay, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने BBC India Sportswoman of the Year award जीता है? And here are the options: PV Sindhu, Ritu Das, ललिता दहिया, ज्वाला गट्टा. ओके, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज PV Sindhu. Indian badminton player PV Sindhu has been voted as the BBC Indian Sportswoman of the Year 2019.
PV Sindhu won the Badminton World Championship in Switzerland last year. She became the first Indian woman player to do so. पीवी सिंधु इंडियन की बैडमिंटन प्लेयर है जिन्हें 2019 BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और पीवी सिंधु लास्ट ईयर स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी एंड शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू वॉन दिस चैम्पियनशिप, ओके, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ओके, स्विट्ज़रलैंड में उन्हें ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिला था। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर द क्वेश्चन नंबर 4 इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द रिचेस्ट मैन इन एशिया? पूरे एशिया में इनमें से सबसे ज़्यादा अमीर इंसान कौन है? सो हियर द ऑप्शंस आर जैक मा, विराट कोहली, आदित्य बिरला, अनिल अंबानी। So here the correct answer is Jack Ma. Mukesh Ambani, chairman of Reliance Industries Limited, has lost the crown of Asia's richest man as RIL has faced a sharp drop in share prices. Now, Jack Ma, co-founder and former executive chairman of Alibaba Group, is the richest man in Asia. So पहले से हम सभी जानते थे मुकेश अंबानी was the richest man of Asia, okay? बट अब मुकेश अंबानी एशिया के रिचेस्ट मैन नहीं रहे। अब एशिया के रिचेस्ट मैन है जैक मा। हाँ जी, मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चेयरमैन थे और रिलायंस इंडस्ट्री को इन कुछ दिनों में बहुत ही प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिस वजह से अब वो रिचेस्ट मैन नहीं रह पाए। सो नाउ जैक मा इज़ द रिचेस्ट मैन इन एशिया। He is the co-founder and former executive chairman of Alibaba Group. जैक मा कौन है? जैक मा फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और को-फाउंडर है अलीबाबा ग्रुप के, ओके? एंड नाउ ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन एशिया। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5, which of the following states has decided to keep all cinema theaters closed till 31st March due to coronavirus outbreak? कोरोना वायरस की वजह से किस राज्य ने ये फैसला लिया है कि सारे सिनेमा थिएटर 31 मार्च तक बंद रहेंगे? किस राज्य में 31 मार्च तक सारे सिनेमा थिएटर बंद रहेंगे ड्यू टू कोरोना वायरस? सो here are the options: Rajasthan, Delhi, Punjab, Kerala. So here the correct answer is Kerala. Kerala government has decided to keep all the cinema theaters closed from March 11 to March 31, 2020. This decision has been taken at a meeting of cinema organizations in Kochi to stop spread of novel coronavirus. The state has reported 17 confirmed cases as of March 11. So, केरला की सरकार ने ये डिसीज़न लिया है कि सारे सिनेमा थिएटर केरला में मार्च 11 से लेकर मार्च 31 तक बंद रहेंगे। और ये डिसीज़न कोची के सिनेमा ऑर्गेनाइजेशन में लिया गया ताकि कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोका जा सके। और स्टेट में 11 मार्च से लेकर अभी तक टोटल 17 कन्फर्म्ड केसेस पाए गए हैं, ओके? सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर द क्वेश्चन नंबर 6 इज when is the foundation day of the Central Industrial Security Force CISF observed in India? CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का फाउंडेशन डे भारत में कब मनाया जाता है?
और यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 9th मार्च, 10th मार्च, 11th मार्च, 12th मार्च. Okay, so here the correct answer is 10th March. The CISF was established on March 10, 1969 in India under the CISF Act 1968. Therefore, the foundation day of the Central Industrial Security Force is observed every year on 10 March in India. CISF का establishment कब हुआ था? CISF establish हुआ था 10 मार्च 1969 में. ओके, सो ये CISF एक्ट 1968 के अंडर इस्टेब्लिश हुआ था, इसलिए हर साल अब 10 मार्च को CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है भारत में. ओके, so now let's move to next question. So here the question number 7 is, which among the following senior Congress leader joined the BJP on March 11, 2020? 11 मार्च 2020 में कौन से कांग्रेस लीडर ने बीजेपी ज्वाइन किया है? किस सीनियर कांग्रेस लीडर ने बीजेपी ज्वाइन किया है 11 मार्च 2020 में? सो हेयर आर द ऑप्शंस: दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ज्योतिरादित्य सिंधिया. ओके, former Congress leader Jyotiraditya Scindia formally joined the Bharatiya Janata Party in the presence of BJP President JP Nadda on March 11, 2020. He had officially resigned from the Indian National Congress on March 9 after serving the party for nearly 18 years. He had joined the party in December 2001. Okay. जो फॉर्मर कांग्रेस लीडर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ बीजेपी प्रेसिडेंट जो कि हैं जेपी नड्डा. कब ज्वाइन किया? 11 मार्च 2020 में. और ऑफिशियली इन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया मार्च 9 में. ओके, 18 साल रहे वो कांग्रेस में और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने पार्टी इधर ज्वाइन कर लिया. और उन्होंने कांग्रेस पार्टी कब ज्वाइन किया था? दिसंबर 2001 में. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर द क्वेश्चन नंबर 8 इज, which state has suspended the entry of foreigners amid coronavirus scare? किस राज्य ने कोरोना वायरस की वजह से फॉरेनर्स की एंट्री बंद कर दी है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश हैज सस्पेंडेड द एंट्री ऑफ फॉरेनर्स amid the rising threat of coronavirus in India. The state government has stopped issuing the protected area permit to foreigners. अरुणाचल प्रदेश ने फॉरेनर्स की एंट्री बंद कर दी ताकि कोरोना वायरस से सेफ रह सके. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 9. Indian Railways integrated all its railways helplines into which single number, which is Rail Madad Helpline for quick grievance redressal and inquiry during the journey. भारतीय रेलवे ने किस एक नंबर में रेलवे के सारे हेल्पलाइन को किस एक नंबर से जोड़ दिया है जिसे रेल मदद हेल्पलाइन नंबर बोला जाता है, जिससे कि जर्नी के ड्यूरिंग कोई भी इंक्वायरी या कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से आप बता सकते हो. सो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 139, 141, 189, 196. सो हियर द करेक्ट आंसर इज 139. Indian Railways has integrated all railway helplines into single number 139, which is Rail Madad Helpline for quick grievance redressal and inquiry during the journey. As the new helpline numbers 139 will take over all the existing helpline numbers, it will be easy for the passengers to remember this number and connect with railways for all their needs during the travel. Okay. So
भारतीय रेलवे ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर को एक नंबर से ज्वाइन कर दिया जो कि 139। ये रेल मदद हेल्पलाइन नंबर डिक्लेयर किया गया है, और जिससे कि आप जर्नी के ड्यूरिंग कोई भी इंक्वायरी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि न्यू हेल्पलाइन नंबर जो है वो ही अब एग्जिस्टिंग हेल्पलाइन नंबर की जगह पे काम करेगा। तो आप अपने रेलवे के ड्यूरिंग जर्नी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन 139 पे ले सकते हैं। सो नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, Super 75 scholarship scheme is launched in which state on International Women's Day to support the education of meritorious girls from poor families? Super 75 स्कॉलरशिप स्कीम कब लॉन्च किया गया है, किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, ताकि जो भी गरीब फैमिली से जो भी गर्ल्स हैं उन्हें एजुकेशन में सपोर्ट मिल सके। सो हेयर आर द ऑप्शंस: केरला, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। So here the correct answer is Jammu and Kashmir. On International Women's Day, Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha announced the launch of Super 75 scholarship scheme to support the education of meritorious girls from poor families, so that they can excel in streams like medical, engineering, ITI and humanity and contribute to nation building. सो इंटरनेशनल वुमेंस डे पे जम्मू और कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनाउंस किया कि एक सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि सारी गरीब फैमिली के जो भी गर्ल्स हैं उन्हें एजुकेशन में सपोर्ट किया जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.